मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन। इन एवरी बिजनेस देयर इज a certain assets of the fixed assets but they are needed for the conduct of the business operation. Some examples such needs: building, plant and machinery, motor vehicle, furniture, office equipment. These assets have the definite span of the life. After the expiry, with the assets will be their usefulness for the business operation. डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल एंड द परमानेंट डिक्रीज है, जिसमें एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम एनी कॉजेज़, किसी भी कारण से वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन के एक डिक्लाइन वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स, लैंड को छोड़कर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सच फॉल इन द परमानेंट नेचर, once the value of the assets is the depreciation, it cannot be restored in the original cost. Depreciation is a gradual and the continuous process. Depreciation is not the process of the valuation of assets, process of the allocation the cost of the assets effective span of the life. It decreases only the book value of the assets, not the market value. The term depreciation को यूज़ किया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ द टेंजिबल फिक्स एसेट्स। देयर ये कहता है इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंसिस। Causes of depreciation: by constant use. Due to the constant use of the fixed assets, operation wear and tear arise in them, which result in the reduction of their value. By expiry of time, the value of the majority of the assets decrease. Passes of time, even they are not be but to use the business, such as the rain, winds, weather contribute the distortion of the business. By expiry of the legal rights, there are the certain assets with the value of the span of the life, such as lease. For example, if the lease has been obtained 20 years 5 lakh, तो हम इसे लूज़ हो जाएगा 1/20 करेंगे बच्चे, 25,000 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 20 साल तक इसकी वैल्यू होते होते लास्ट में क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट आता है बाय एक्सपायरी ऑफ द लीगल राइट्स, देयर आर द सर्टेन assets, there are the certain assets which be decline span of the life, such as the lease. For example, if the lease has been obtained from the 20 years, तो अब इसे 1/20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाय ऑब्सोलेंस, quite often it is the new inventions, techniques and the old assets become obsolete and may have to the declared can be paid in the physically. By accident, sometimes a machine may be destroyed by the earthquake, flood, vehicle may be damaged by the accident. By depletion, depletion is the decrease in the value of the wasting, such as the mine, oil mine, they are constant working. By permanent fall in the market price, due to the fluctuation of the market value of the fixed assets is not recorded, because such assets not the resale in the use of the business. Next है needs, इसके बच्चे पॉइंट ही कर दो। For ascertaining the true profit and loss, for showing the true and the fair of the financial position, to ascertain the accuracy cost of production, to provide funds for the replacement of assets, to prevent the distribution of the profit out of the capital, for avoiding the overpayment of the income tax, other objective. नेक्स्ट आता है टोटल फैक्टर्स कौन के हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट्स को हम डिटरमाइन करते हैं, फिक्स और इसमें शामिल होती है, और एसेट्स के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स में यूजफुल लाइफ तक आपने एसेट्स को यूज़ किया, ये भी बड़ा इफेक्ट डालती है बिजनेस ऑपरेशन में। 25 साल तक मान लीजिए आपने यूज़ किया और 15 साल के बाद ऑब्सोल्यूट होनी है, तो ये बेटर वे है मशीन को इम्प्रूव करने का। स्क्रैप वैल्यू, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी 60,000 की, खर्चा हुआ 4,000 का और 1,000 हुआ इंस्टॉलेशन पे, तो अब इसकी लाइफ स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 8,000 और स्क्रैप वैल्यू के बाद एस्टिमेट लाइफ दी है 10 साल के लिए। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप परचेज जितनी भी एक्सपेंसेस को प्लस करके उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एनुटी मेथड, डिप्रेशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीनरी आवर रेट मेथड।
हमारे सिलेबस में हमारे 2 ही करने हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से पुकारा जाता है। इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स परसेंटेज पर होता है ओरिजिनल कॉस्ट पर। इसका नाम होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फार्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। इसके बाद है आपके पास अलग अलग तरह की जनरल एंट्रीज दी हुई हैं। एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर लिखते हैं। चेक के द्वारा पेमेंट की है तो बैंक, आप कैश में भी लिख सकते हैं। वेंडर के द्वारा दी गई है, उधार पर दी गई है तो वेंडर का नाम। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स को सेल करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स को बेचने पर आपको लॉस हो जाता है तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और यदि प्रॉफिट हो जाता है तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास 1 अप्रैल 2009 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी। 6000 आपको दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है। खरीदी उसने 90,000 की, 4000 रिपेयरिंग चार्जेज हैं। एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है आपको 10 साल। स्क्रैप वैल्यू दी हुई 20,000। सिंपल सा तरीका है, पहले आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ को डिवाइड करेंगे। 1 लाख माइनस 20, 1 लाख कैसे हुआ? 90,000 है, 6,000 और 4,000 तीनों को प्लस करेंगे, 8,000 का डेप्रिसिएशन आया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू में 100। 8,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किया, 8%। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपका सन दिया हुआ है 2009, उसके अंदर आप 2 बैंक करके 1 लाख भी लिख सकते हैं। 31 मार्च 2010 में डेप्रिसिएशन लगा कितने का? 8,000 का। 1 लाख में से आपका 8,000 माइनस किया, बाय बैलेंस शीट कितना बचा आपका? 92। आपको 4 ईयर्स के लिए कहा गया है। 2010 में 2 बैलेंस बीडी, फिर डेप्रिसिएशन कितना हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, कितना आ जाएगा? 8,000। बाय बैलेंस शीट आपका आ गया 84। ऐसे ही बच्चे आप 3 साल हो गया ये आपका। लास्ट में आपका 4th ईयर का 76 है, डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8,000। बैलेंस कितने का बचा आपका? 68 का। आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट ईयर आपका 5th ईयर है वहाँ पर आपने लिखना है 2 बैलेंस बीडी 68 2013। आपको बनाना कहाँ तक है? 4 साल तक, 12 का तक, लेकिन आपको 13 तक की ओपनिंग दिखानी पड़ेगी। 9, 10, 11, 12 और फिर आपका क्या आ गया? 13। डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आपको लॉस हुआ, एंट्री क्या होती है? आपकी एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन का क्या होगा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप 4 साल में लिखोगे 2 मशीनरी। फर्स्ट आपका जो 31 मार्च 2010 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। आप 4 साल तक लिखेंगे 2010, 11 और 12, 13 तक। क्लियर बेटा जी?